Good morning students, I am Bharat Kumar and I welcome all the students of class 10 in this video. Students, in our last class we studied about the concept of electric potential and potential difference. Now in this video we will continue our topic, and today I will use some Hindi terms as well. Not the terms, but you can say the explanation, because some students are saying that Hindi explanation would be more better. So that is why I have decided to include the Hindi explanation as well. Still, in my two videos the comments are very less and views are also very less, so kindly see my video, subscribe my channel and post your valuable comments, so that I will be encouraged and I will make more informative and more useful videos for you. As I had promised in the beginning of the first video that I will complete your science syllabus, so you need to stick with my video and you will see that the difference will come. So let's continue our today's topic. So let's start. We know that through a cell or a battery, potential difference between the two ends of a conductor is maintained. I told you how we can maintain a potential difference between the two ends of a conductor, that is through a cell or a battery. This was also a question. This question had already came in the board examination. And because of this potential difference, the current flow regulates in a circuit. Understood? Now, suppose a single cell has a potential difference of 1.5 volts between its two terminals. When this cell is connected to a torch bulb through copper connecting wire, then because of the potential difference, electric current to flow through the copper wire and bulb lights up. Understood? See this diagram. So here is a cell is there and its voltage is 1.5 volt. Now there's a bulb and a copper wire. Okay, the battery and copper wire is obviously connected with this battery. Okay, and this bulb, all are connected to each other. Bulb glows or bulb lights up. Why? Because of the flow of current. And how the current flows? Because of the maintenance of the potential difference. And how the potential difference is maintained? Through the cell. I hope I am clear. So we can summarize it as follows. Cell is there, that is consists of chemical energy. It maintains voltage. Okay, cell maintains voltage, that is potential difference. And charge comes in motion in conductor. Okay, and current produces because of the motion of the charges. If you will understand this, your concept would be clear. Again I repeat, cell is there, that having chemical energy and it maintains voltage. Who maintains or regulates potential difference or voltage? Potential difference and voltage are same. So who maintains? Cell maintains. And because of this potential difference, charge will come in motion. That is negative charge, that is electron will come in motion. And when the electron will be in motion, current will produce. Understood? So all are linked to each other. Next. Now we will discuss about very important topic, that is direction of electric current. What we will discuss? Direction of electric current. When electricity was invented, on that time electrons were not discovered. So electric current was considered to be a flow of positive charges, and the direction of flow of the positive charges was taken to be the direction of electric current. Understood? So what I am saying here, the Hindi explanation is, when electricity was invented, उस समय electrons were not there. Okay, so on that time what we people used to consider, that the flow of positive charge is current. ठीक है? So but later on what happened, जब electron invent हो गया, then the concept got changed. But earlier, when the electron was not discovered, then electric current was considered to be a flow of positive charge, and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. So the conventional direction of electric current is from positive terminal of the cell to negative terminal through the outer circuit. Okay.
तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक है। डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में या इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया है। अगर आप इन सिर्फ इतना ही नोट्स और इतना ही आप देख लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। और कई स्टूडेंट्स ने पिछले साल, मेरे स्टूडेंट ने 95, 97, 98 इस तरह से स्कोर किया हुआ है साइंस में, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप कर सकते हैं, आप जहाँ ट्यूशन जाते हैं आप जाइए। अगर आप इस वीडियो को, मेरे वीडियो को 20 मिनट्स का अगर है, सपोज 15-20 मिनट जो भी है, अगर आप उसको रेगुलर देखते हैं तो आई कैन गारंटी कि आप अच्छा करेंगे। और ये जो नोट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको मैंने खुद बनाया है। एनसीईआरटी और बाकी जो भी साइड बुक्स हैं जैसे भी है, कुछ मेरा कंसेप्ट है, तो उन सभी से मिलाकर ये डाला हुआ है, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप एक स्टडी रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, ये फुल पैकेज आपका हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, कमिंग टू द पॉइंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल है। हाउएवर एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इलेक्ट्रॉन फिर इन्वेंट हो गया, तो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और कन्वेंशनल क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में इस तरह से आता है। इसके बाद एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। When no cell or battery is connected across a conductor, the electrons flow in random direction. जब बैटरी भी ना हो, सेल भी ना हो, कोई ना हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन रैंडम डायरेक्शन, इस तरह से आप देख सकते हैं। बट व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन इन इट फ्लो टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जब सेल या बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वही करंट का फ्लो है। और करंट का फ्लो अभी आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो जब यहाँ पे सेल कनेक्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव ये जा रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। एक 11th में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है यहाँ पे, उस वेलोसिटी का क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कितना होता है, 1 mm पर सेकेंड, काफी स्लो है, 1 mm पर सेकेंड। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन इज, सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को सॉल्व भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज, जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा आप उसको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दूसरे बुक से भी मैं ले रहा हूँ और उसको भी मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जिन्हें प्रॉब्लम होता है वो कैसे सॉल्व करें। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, हाउ मच वर्क इज डन, यानी क्या करना है, वर्क वी नीड टू फाइंड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। क्या दिया हुआ, जो भी गिवन है, जो दिया हुआ उसको आपको लिखना है। तो Q इज गिवन 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, भी दिया हुआ है 12 वोल्ट। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, V इक्वल्स टू W बाई Q। when I was telling you in my previous class about the potential difference, the formula was given, क्या था फॉर्मूला, V equals to W by Q। तो W equals to VQ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन 24 जूल। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो क्वेश्चन है उसको आपने लिखना है, जो गिवन है, जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है उसको आपको याद रखना है, वो लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट, आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग कोई इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पहले हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर, सेल है इसका आंसर। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है, काफी आसान है। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? This is an important numerical, you need to solve this.
वैसा ही करना है। एक हिंट्स इसमें मैं आपको दे रहा हूँ, एनर्जी जो होता है वो वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो वर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप उसको लगाएंगे आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूला से ये क्वेश्चन है, और आपको शुरू से रिवाइज करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी इसके पोस्ट कर रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप उसको देख सकते हैं। तो ऑनेस्टली पढ़िए, और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप भारत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल 3 वीडियोस हैं, ये मेरा 4th वीडियो है। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, इन चीज़ों से ही मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। और निश्चित रूप से अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं सिलेबस जरूर आपका कंप्लीट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।